عقل مند کسان۔ ہم آپ کو ایک کسان کی کہانی سناتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کسان کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمارے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں، چاول، گندم، دالیں وغیرہ، اور سارے پھل، سیب، آم، انگور وغیرہ زمین سے اگاتے ہیں۔ زمین کو کھودا جاتا ہے اور زمین میں بیج ڈالے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے اناج اور پھل اگاتے ہیں۔ جو شخص زمین پر محنت کرتا ہے، اسے کھودتا ہے اور اس میں بیج ڈالتا ہے، اسے کسان کہتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک کسان کی ہے۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد کے 3 بیٹے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھے، لیکن احمد ایک بات سے بہت پریشان تھا کہ اس کے بیٹے بہت سست اور کام چور تھے۔ وہ کام کاج میں بالکل اس کی مدد نہیں کرتے تھے۔ آخر بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پیارے بیٹوں، ہماری زمین کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے اور میں اسے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر تم میرے ساتھ مل کر خزانے کی تلاش کرو، اس لیے اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم مل کر یہ کام کر لیں۔ سارے بیٹے خزانے کی تلاش پر راضی ہو گئے اور انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن ان کو خزانہ نہ ملا۔ انہیں یہ دیکھ بہت غصہ آیا کہ ان کے والد نے ان سے جھوٹ کہا۔ انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی تو ان کے والد نے کہا کہ میرے پیارے بیٹوں، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ جھوٹ بولنا تو بہت بری اور گندی عادت ہے، اور مسلمان تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس میں خزانہ ہے، تو میرے پیارے بیٹوں، یہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے، لیکن تم جلدی کر رہے ہو اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ تم وہ کرو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ بیج لو اور زمین میں ڈال دو۔ جب سارے بیٹوں نے مل کر بیج زمین میں ڈال دیے تو کسان نے کہا، آؤ اب وضو کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ بارش فرمائے۔ سب نے وضو کیا، نماز پڑھی اور بارش کی دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور خوب بارش ہوئی، اور کچھ ہی دنوں میں زمین میں پودے اگنے شروع ہو گئے۔ کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو یہ ہے وہ خزانہ جس کا میں نے تم سے کہا تھا کہ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو اس کا پھل اس کو ضرور ملتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ بھائی جان کے جوتے۔ بھائی جان کا اصل نام بلال تھا، مگر امی ابو انہیں منع میاں کہہ کر پکارا کرتے۔ ان کے دوست انہیں بلال کے نام سے جانتے۔ میٹرک میں ہونے کے باوجود ان سے ایسی حرکت کی امید نہ تھی جیسی گزشتہ 3 مہینوں سے کر رہے تھے۔ بھائی جان مسلسل ہر ماہ اپنے جوتے گم کر رہے تھے۔ تیسری بار جب وہ جوتوں کے بغیر اسکول سے گھر آئے تو امی بے حد پریشان ہوئیں اور انہوں نے بھائی جان سے پوچھا۔ انہوں نے وجہ بتائی۔ وہ امی سے مشکل ہی سے ہضم ہو پائی۔ رات کو سب ابو کے سامنے موجود تھے۔ ہاں منع میاں، بتاؤ آج جوتے کہاں گئے؟ ابو نے پوچھا۔
ابو میں نے امی کو بتا تو دیا ہے، بھائی جان نے رونی صورت بنا کر جواب دیا، مگر اس پر اعتبار کرنا تو مشکل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول سے واپسی پر تم مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور واپسی میں جوتے اپنی جگہ پر نہیں تھے؟ ہر بار جوتوں کے گم ہونے کی تم یہ وجہ بتاتے ہو۔ اس مسجد میں جہاں تم نماز پڑھتے ہو میں بھی اکثر وہیں نماز پڑھتا ہوں، مگر میرے تو کیا کسی کے جوتے بھی وہاں گم نہیں ہوتے۔ منّے میاں اصل بات بتاؤ، ہر بار ایک ہی بہانہ نہیں چلے گا۔ جی ابو، بھائی جان ہکلائے۔ ابو نے اس کے بعد کچھ نہ کہا اور پھر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ دوسرے دن ابو بھائی جان کے اسکول گئے اور پرنسپل صاحب سے مل کر انہیں ساری صورتحال بتائی۔ پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچر سلطان صاحب کو بھی اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان صاحب نے اس بارے میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ابو مطمئن ہو کر واپس دفتر چلے گئے۔ سلطان صاحب دوبارہ اپنی کلاس میں گئے تو انہوں نے خود بھائی جان کو اپنے پاس بلا کر بہت ہی پیار کے ساتھ پوچھا، مگر بھائی جان یہاں بھی بات گول کر گئے۔ دوسرے دن سلطان صاحب نے کسی خیال کے تحت ان تینوں بچوں کو اپنے پاس بلایا جنہیں کئی دنوں سے نئے جوتے نہ پہن کر آنے پر سزا مل رہی تھی۔ ان تینوں کے والدین کی مالی حالت بہت اچھی نہیں تھی، اس لیے وہ نئے جوتے خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ یہ بات سلطان صاحب کو بھی معلوم تھی، مگر اسکول کا نظم و ضبط رکھنے اور بچوں کو صفائی کا پابند بنانے کے لیے انہوں نے ان بچوں کو سزا دی۔ وہ تینوں مسلسل کئی دنوں سے پھٹے ہوئے جوتے پہن کر آ رہے تھے۔ آج جب سلطان صاحب نے ان کے جوتے دیکھے تو وہ نئے معلوم ہو رہے تھے۔ انہوں نے ان تینوں بچوں کو پرنسپل صاحب کے آفس میں بلا لیا اور نئے جوتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان صاحب نے فون پر ابو کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ ابو یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ رات کو کھانے کے بعد ابو کے کمرے میں بھائی جان کی حاضری تھی۔ ابو کے کمرے میں صرف انہیں ہی بلایا گیا۔ جب وہ سلام کر کر کمرے میں داخل ہوئے تو ابو نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر ابو بولے، ہاں بھائی منّے میاں، تمہارے جوتوں کے 3 جوڑوں کے گم ہونے کی اطلاع اور اصل حقیقت تو مجھے معلوم ہو گئی۔ ابو نے کہا اور سانس لینے کے لیے کچھ دیر رک گئے۔ جی ابو، بھائی جان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ بیٹا مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے دوستوں اور ہم جماعت ساتھیوں کا اس قدر خیال رکھتے ہو، مگر اس میں ایک غلطی ہو گئی۔ وہ کیا ابو؟ بھائی جان نے پوچھا۔ ابو نے کہا، تم نے اس سارے معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تم مجھے اور اپنی امی کو اعتماد میں لیتے تو ہم تمہیں کبھی بھی اس کام کے لیے منع نہ کرتے۔ تم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ہمارا مذہب اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں اس پر دوسروں کا حق سمجھیں۔ آج ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ضرورتوں سے زیادہ عطا فرمایا ہے، اس لیے اپنے اطراف کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی ابو، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔
इजाज़त लेकर कमरे से बाहर आ गए। नीचे हम सब उनका बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे और अम्मी को ये डर था कि कहीं जूतों वाले मामले पर अब्बू भाईजान को सज़ा ना दे रहे हों, मगर भाईजान का पुरसुकून चेहरा देखकर हम खुश हुए और इस खुशी में इस वक्त मज़ीद इजाफ़ा हुआ जब भाईजान ने जूतों के गुम होने की असल हकीकत हमें भी बता दी। यूं कई दिनों से ज़ेरे बहस रहने वाला जूतों का मामला बिल आखिर ख़त्म हो गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ। ईमानदारी का सिला। किसी ज़माने में एक बादशाह था। इसे तरह तरह के परिंदे और जानवर पालने का शौक था। वो साल में एक मर्तबा जानवर और परिंदे पकड़ने खुद जंगल में जाता था। इसके पास कई तरह के जानवर और परिंदे थे। एक मर्तबा बादशाह जंगल गया। इसने कई इकसाम के तोते और दूसरे परिंदे पकड़े। बादशाह की निगाह एक हिरन पर पड़ी। उसने फंदा डालने की रस्सी हाथ में ली और घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागता भागता झाड़ियों में गुम हो गया। बादशाह के हाथ नहीं लगा। वो नाउम्मीद होकर लौटने लगा, लेकिन रास्ता भूल गया। हिरन के पीछे पीछे वो बादशाह अपने साथियों से ना जाने कितनी दूर आ गया था। इसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। इसने सोचा, यहाँ जंगल में रुकना ठीक नहीं है, किसी एक समेत आगे बढ़ूं, शायद रास्ता मिल जाए और शाही महल पहुंच जाऊं या अपने साथियों से जा मिलूं। ये सोचकर बादशाह एक समेत चल पड़ा। बादशाह को चलते चलते बहुत देर हो गई थी, मगर कोई रास्ता अब तक नहीं मिला। सूरज भी गुरूब हो रहा था। सूरज डूबने से पहले बादशाह को एक पगडंडी मिल गई। वो घोड़ा मोड़ कर पगडंडी पर तेजी से चलने लगा। कुछ दूरी पर उसे उजाला नजर आया। बादशाह उसी तरफ बढ़ता गया। करीब पहुंचने पर इसने देखा कि एक झोंपड़ी के आगे एक किसान और उसकी बीवी बैठे हुए थे। किसान बादशाह को देखकर हैरत में पड़ गया और हकलाता हुआ बोला, जहाँ पनाह आप यहाँ? बादशाह बोला, मैं परिंदे पकड़ने आया था। एक हिरन के पीछे भागते हुए रास्ता भूल गया हूँ। अब रात में यहीं गुजारना चाहता हूँ, सवेरे चला जाऊंगा। किसान बेचैन होकर बोला, जहाँ पना ये सब आप ही का दिया हुआ है, मगर आप यहाँ कैसे ठहरेंगे? मेरे पास तो एक अच्छा बिस्तर भी नहीं है। तो क्या हुआ? बादशाह ने कहा, अगर मैं किसान होता तो क्या शाही महल ही के मुलायम बिस्तर पर सोता। किसान ने बादशाह का घोड़ा एक दरख्त से बांध दिया और इसके खाने को कुछ घास भी डाल दी। बादशाह ने किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमानत है जहाँ पनाह। अच्छा, कुछ खाने का सामान हो तो ले आओ, भूख लग रही है। जनाब, मेरे पास आपके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चंद सूखी रोटियां हैं, वो आप खा नहीं सकते। मैं खा लूंगा, तुम ले आओ। किसान हैरत ज़दा होकर सुबह की बनी हुई रोटियां ले आया। बादशाह ने रोटी खाकर पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। थकावट की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह जाने की तैयारी करते हुए बादशाह ने बोला, अमानत, तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझसे जरूर मिलना। अब रास्ता बता दो, मैं चलूं। अमानत जब बादशाह को राह दिखाकर लौटा तो इसने बीवी के हाथ में सोने की जंजीर देखी। बीवी बोली, जिस जगह बादशाह सलामत सोए थे वहाँ ये पड़ी थी। किसान ने बीवी के हाथ से जंजीर ले ली और बोला, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी शाही महल जाना चाहता हूँ। क्यों जाना है? आई हुई दौलत को क्यों ठुकराते हो? इसकी बीवी बोली, हमने कोई चोरी थोड़ी ही की है। अमानत ने जंजीर को उलट पलट कर देखा। इसमें एक चमकदार हीरा भी लगा हुआ था। बीवी की बात सुनकर वो गुस्से से बोला,
अपनी जबान को लगाम दो। ये जंजीर ना तेरी मेहनत की कमाई की है, ना मेरी मेहनत की कमाई की है। मैं इसे ज़रूर वापस करने जाऊंगा। अब मज़ीद कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप रोटियां बना दो। उसी दिन शाम तक अमानत शाही महल पहुंच गया। पहरेदार ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। वो उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। उसने पहरेदार की बहुत खुशामद करी। आखिर में इसने कहा, अच्छा, मुझे अंदर मत जाने दो। बादशाह सलामत से इतना कह दो कि कल शाम वाला अमानत आया है। पहरेदार मान गया और इसने खबर अंदर भिजवा दी। फौरन ही अमानत को अंदर बुलवाया गया। अमानत ने फर्शी सलाम करने के बाद जंजीर बादशाह के सामने रख दी। बादशाह खुश होकर अमानत से बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। ये जंजीर मैंने जानबूझकर छोड़ी थी। जी जनाब, जानबूझकर? हाँ, मैं तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान लेना चाहता था। तुम कामयाब हो गए हो, इसलिए इनाम के मुस्तहिक हो। देखो, ऐसा है कि शाही महल में एक खजांची की ज़रूरत है। मैं तुम्हें इस ओहदे पर रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? जनाब का गुलाम हूँ, जो हुक्म दें। वैसे जहाँ पना इस ओहदे के लायक मैं नहीं हूँ, फिर भी आप जो कहेंगे मैं तामील करूँगा। और फिर दूसरे दिन से खजांची का ओहदा अमानत ने संभाल लिया। किसी ने सच कहा है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ। इत्तेहाद ना होने का नुकसान। तहरीर बाय रुबीना नाज। ये बहुत पुरानी कहानी है। किसी जंगल में 4 गायें रहा करती थी, जो हमेशा साथ साथ रहती थी। साथ साथ चरने जाती थी, साथ साथ खाती थी, साथ साथ पीती थी और ख़तरे में हर एक का बहुत ख्याल रखती थी। अगर कभी किसी को किसी मुश्किल में देखती तो खुद इसकी मदद के लिए आगे आ जाती। इन 4 गायों का आपस के इत्तेहाद का ये हाल था कि कभी शेरों और चीतों को भी इन पर हमला करने या उन्हें हड़प करने की जरूरत ना होती थी। मगर फिर भी सभी शेर और चीते इन 4 पर नज़रें रखा करते थे और इस तलाश में रहते थे कि जैसे ही मौका मिले वो इन पर हमला करके उन्हें खा जाएं। लेकिन इनमें एक शेर ने ख़ास तौर से इनकी निगरानी शुरू कर दी और उन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता था। इसके बावजूद इसे कभी ऐसा बेहतरीन मौका नहीं मिला जो वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर पाता और इसके नतीजे में इन गायों को अपना शिकार बना लेता। एक रोज़ न जाने क्या हुआ कि इन 4 गायों की बदकिस्मती थी कि इनमें आपस में झगड़ा हो गया और वो 4 एक दूसरे से जुदा होकर अलग अलग अपनी मर्ज़ी की चरागाहों में घास चरने चली गईं। जैसे ही ये बात शेर और चीते के इल्म में आई, वो खुशी से खिल उठे। चुनाचा उन्होंने इन गायों की इस गलती से फ़ायदा उठाते हुए उन्हें शिकार करने का फ़ैसला कर लिया। काफ़ी सोच विचार के बाद शेर और चीते ने इन पर हमला करने का मौका तलाश कर ही लिया। उन्होंने पहले से खुद को जंगल में झाड़ियों के पीछे छुपा लिया और अकेली गाय का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही इन 4 में से एक गाय तन्हा इनके करीब झाड़ियों के पास आई तो इन दोनों ने एक साथ इस पर हमला कर दिया और लम्हों में अपने खाने का इंतज़ाम कर लिया। इस तरह एक एक करके 4 गायें इस शेर और चीते का निशाना बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि इत्तेहाद में सलामती है। जो लोग अलग अलग रहते हैं और मिलकर नहीं रहते, वो बहुत जल्द दुश्मन का शिकार बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ।
मोर के पर। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक अक्लमंद हकीम जंगल से जा रहा था। उसने वहाँ एक मोर को देखा जो अपने खूबसूरत परों के साथ झूम रहा था। इस दौरान उसका एक एक पर उसके जिस्म से अलग हो गया था। हकीम ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर बहुत हैरान हुआ। वो मोर के पास गया और उसको मुखातिब करके कहा, ए इस कायनात के खूबसूरत परिंदे, क्या तुझ में अक्ल नहीं है कि तू अपने हसीन परों को जो खूबसूरती का शाहकार है, इस बेदर्दी से अपने जिस्म से अलग कर रहे हो? तेरे ये खूबसूरत पर जिसको लोग महफूज करके रखते हैं, इनसे पंखियां बनाई जाती हैं, क्यों इनके साथ ऐसा कर रहा है? ये बहुत अनमोल होते हैं। ए नादान, तेरे खालिक ने तुझे खूबसूरत परों से नवाजा है और तू अपने खालिक की इस नेमत को धुतकार रहा है। क्या तेरे अंदर गुरूर आ गया है जो अपने रब की नेमत को इस तरह से अपने जिस्म से दूर कर रहा है? मोर ने हकीम की ये बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो ज़ारो कतार रोने लगा। मोर के यूं रोने से हकीम भी बहुत दुखी हो गया और वो अपनी बातों पर नादिम हुआ कि मैंने क्यों इस बेचारी मोर का दिल दुखी किया। मोर ने हकीम से कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, काश तू मेरे हालात समझ सकता और जान सकता कि मैंने क्यों ऐसा किया है। तूने मेरी बात सुने बगैर ही मुझे मुजरिम करार दे दिया है। हकीम उस मोर की तरफ मुतवज्जा हुआ और उसकी बातों पर गौर करने लगा। मोर ने कहा, क्या तू नहीं जानता, हर तरफ से रोज हजारों बलाएं मेरे इन परों की वजह से मेरी जान लेने के लिए आती हैं। जालिम शिकारी इन्हीं परों के लिए हर तरफ जाल बिछाता है। संगदिल तीर अंदाज इन परों की खातिर ही मेरी जान से खेलते हैं। इन तमाम आफतों से खुद को महफूज रखने के लिए मैंने अपने तमाम पर अपने जिस्म से अलग कर दिए हैं, अपने आप को बदसूरत बना दिया ताकि तमाम बलाएं मुझसे दूर रहें। मेरे नज़दीक जान की हिफाजत बालों पर की हिफाजत से ज़्यादा ज़रूरी है। शोहरत से गोशाए आफियत छिन जाता है और शोहरत बहुत सी बलाएं अपने साथ लाती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ। माँ की ममता। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि समुंदर के किनारे एक दरख्त था जिस पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। एक दिन तेज हवा चली तो चिड़िया का बच्चा समुंदर में गिर गया। चिड़िया बच्चे को निकालने लगी तो उसके पर गीले हो गए और वो लड़खड़ा गई। उसने समुंदर से कहा, अपनी लहरों से मेरा बच्चा बाहर फेंक दे, लेकिन समंदर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। चिड़िया बोली, देख मैं तेरा सारा पानी पी जाऊंगी, तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। समंदर ने अपने गुरूर में गरज कर कहा, ए चिड़िया, मैं चाहूँ तो सारी दुनिया को गर्क कर दूं, तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। चिड़िया ने ये सुना तो बोली, चल फिर खुश्क होने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर उसने समंदर से पानी का एक घूंट भरा और उड़कर दरख्त पर बैठ गई। फिर आई, घूंट भरा, फिर दरख्त पर जा बैठी। यही अमल उसने कई बार किया तो समंदर घबरा के बोला, पागल हो गई है क्या, क्यों मुझे ख़त्म करने लगी है। मगर चिड़िया अपनी धुन में ये अमल दोहराती रही। अभी उसने सिर्फ 20-25 बार ही पानी के घूंट पिए होंगे कि समंदर ने एक जोर की लहर मारी और चिड़िया के बच्चे को समंदर से बाहर फेंक दिया। दरख्त जो काफ़ी देर से ये सब देख रहा था, समंदर से बोला, ए ताकत के बादशाह, तू जो सारी दुनिया को पल भर में गर्क कर सकता है, इस कमज़ोर सी चिड़िया से डर गया। ये बात मेरी समझ नहीं आई।
समंदर बोला, तू क्या समझा मैं जो तुझे एक पल में उखाड़ सकता हूँ, एक पल में दुनिया गर्क कर सकता हूँ, इस चिड़िया से डरूंगा? ऐसा नहीं है। दरअसल मैं एक माँ से डरा हूँ, माँ के जज्बे से डरा हूँ। एक माँ के सामने तो अर्श भी हिल जाता है, तो मेरी क्या मजाल। जिस तरह वो मुझे पी रही थी, मुझे लगा कि वो मुझे रेगिस्तान बना ही देगी। प्यारे बच्चों, देखा आपने एक चिड़िया को कैसे अपने बच्चे के लिए समंदर से लड़ पड़ी। कहने को चिड़िया है, लेकिन ममता का जज्बा उसमें भी कूट कूट के भरा है। सब माँओं को अपने बच्चे अजीज होते हैं। आपकी माँ भी आपसे बहुत प्यार करती होंगी, आपकी ज़रा सी तकलीफ दुख पर परेशान हो जाती होंगी, है ना? तो आपको भी चाहिए कि अपनी माँ का ढेर सारा ख्याल रखा करें और उनकी हर बात पे अमल किया करें। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ। मोर के पर। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक अक्लमंद हकीम जंगल से जा रहा था। उसने वहाँ एक मोर को देखा जो अपने खूबसूरत परों के साथ झूम रहा था। इस दौरान उसका एक एक पर उसके जिस्म से अलग हो गया था। हकीम ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर बहुत हैरान हुआ। वो मोर के पास गया और उसको मुखातिब करके कहा, ए इस कायनात के खूबसूरत परिंदे, क्या तुझ में अक्ल नहीं है कि तू अपने हसीन परों को जो खूबसूरती का शाहकार है, इस बेदर्दी से अपने जिस्म से अलग कर रहे हो? तेरे ये खूबसूरत पर जिसको लोग महफूज करके रखते हैं, इनसे पंखियां बनाई जाती हैं, क्यों इनके साथ ऐसा कर रहा है? ये बहुत अनमोल होते हैं। ए नादान, तेरे खालिक ने तुझे खूबसूरत परों से नवाजा है और तू अपने खालिक की इस नेमत को धुतकार रहा है। क्या तेरे अंदर गुरूर आ गया है जो अपने रब की नेमत को इस तरह से अपने जिस्म से दूर कर रहा है? मोर ने हकीम की ये बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो ज़ारो कतार रोने लगा। मोर के यूं रोने से हकीम भी बहुत दुखी हो गया और वो अपनी बातों पर नादिम हुआ कि मैंने क्यों इस बेचारी मोर का दिल दुखी किया। मोर ने हकीम से कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, काश तू मेरे हालात समझ सकता और जान सकता कि मैंने क्यों ऐसा किया है। तूने मेरी बात सुने बगैर ही मुझे मुजरिम करार दे दिया है। हकीम उस मोर की तरफ मुतवज्जा हुआ और उसकी बातों पर गौर करने लगा। मोर ने कहा, क्या तू नहीं जानता, हर तरफ से रोज हजारों बलाएं मेरे इन परों की वजह से मेरी जान लेने के लिए आती हैं। जालिम शिकारी इन्हीं परों के लिए हर तरफ जाल बिछाता है। संगदिल तीर अंदाज इन परों की खातिर ही मेरी जान से खेलते हैं। इन तमाम आफतों से खुद को महफूज रखने के लिए मैंने अपने तमाम पर अपने जिस्म से अलग कर दिए हैं, अपने आप को बदसूरत बना दिया ताकि तमाम बलाएं मुझसे दूर रहें। मेरे नज़दीक जान की हिफाजत बालों पर की हिफाजत से ज़्यादा ज़रूरी है। शोहरत से गोशाए आफियत छिन जाता है और शोहरत बहुत सी बलाएं अपने साथ लाती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ। जिंदगी का अनमोल सबक। ये एक बादशाह की पुरानी कहानी है। उसका एक बचपन का दोस्त था जिसके साथ वो खेल कूद कर जवान हुआ था। बादशाह अपने उस दोस्त को हमेशा हर वक्त साथ साथ रखा करता था।
اس کی عادت تھی کہ اس کی زندگی میں خواہ کوئی بھی اچھی بری بات ہو، وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن بادشاہ اور اس کا دوست شکار کے لیے جنگل میں گئے۔ دوست نے بادشاہ کے لیے بندوق میں گولی بھری اور بندوق تیار کر کر بادشاہ کو دے دی، لیکن گولی بھرنے میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، اور جب بادشاہ نے شکار کے لیے گولی چلائی تو اس کا انگوٹھا کٹ کر گر گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوست نے اپنی عادت کے مطابق کہا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں یقیناً کوئی بہتری ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور بولا، یہ بہتر نہیں ہے، میرا انگوٹھا کٹ کر ضائع ہو چکا ہے اور تم کہہ رہے ہو اچھا ہوا، اور ساتھ ہی حکم جاری کیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ 1 سال بعد بادشاہ دوبارہ ایک جگہ شکار کے لیے گیا۔ وہاں بدقسمتی سے اسے آدم خور جنگلیوں نے پکڑ لیا اور اپنے علاقے میں لے گئے۔ انہوں نے بادشاہ کے ہاتھ باندھ دیے۔ اب آگ جلا کر وہ بادشاہ کو جلانے ہی والے تھے کہ ان کی نظر بادشاہ کے انگوٹھے پر پڑی، تو پتہ چلا کہ بادشاہ ایک انگوٹھے سے معذور ہے۔ وہمی اور توہم پرست قوم ہونے کی وجہ سے وہ کسی نامکمل انسان کو نہیں کھاتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا۔ جب بادشاہ گرتا پڑتا اپنے محل میں پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کس طرح اس کا انگوٹھا کٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو جیل میں بھجوا دیا تھا۔ فوراً اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کے دوست کو باعزت دربار میں پیش کیا جائے۔ جب اس کا دوست آیا تو بادشاہ نے اسے سارا حال سنایا اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ تم صحیح تھے، وہ اچھا اور بہتر ہی ہوا تھا کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا تھا۔ آج اس انگوٹھے کے نہ ہونے کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ یہ سن کر بادشاہ کا دوست مسکرایا اور بولا، یہ بھی بہتر ہی ہوا کہ آپ نے مجھے جیل بھجوا دیا۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ اچھا اور بہتر کس طرح سے ہوا؟ تم 1 سال تک جیل میں رہے اور کہہ رہے ہو کہ اچھا ہوا۔ دوست مسکرا کر بولا، ہاں اچھا ہوا اور بہت بہتر ہوا کہ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوتا اور وہ جنگلی اب تک مجھے ہڑپ کر چکے ہوتے، کیونکہ میرا انگوٹھا صحیح سالم ہے۔ زندگی میں اکثر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یقیناً اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن انسان فطرتاً جلد باز ہے اور اسی وقت نتیجہ چاہتا ہے، جبکہ قدرت کا نتیجہ تھوڑے وقفے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امید کا سہارا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور سوچ ہمیشہ مثبت رکھنی چاہیے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔